ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ خود اسے کھول کر دیکھیے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رومال حضرت جبرائیل کے ہاتھ سے لے کر کھولا۔ جب آپ نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی بچی کا چہرہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میرے پیارے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا چہرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے یہ چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ ان کی محبت آپ کے تمام غم اور تکلیفوں کو دور کر دے گی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے غائب ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں پریشان ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ رسول اللہ سوچنے لگے کہ ابو بکر کی بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ام رومان تو اسے اپنے گھر میں قابو بھی نہیں کر پاتی، پورا دن وہ ادھر ادھر کھیلتی رہتی ہے، یہ چھوٹی سی بچی بھلا کیسے میری بیوی بن سکتی ہے؟ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے عائشہ کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتے دیکھا تھا، اور وہی بچی اپنی محبت سے میرے تمام غم دور کرے گی۔ اس عمر میں ایک چھوٹی بچی بھلا محبت کا کیا مطلب سمجھتی ہے؟ ان سب خیالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو اٹھے۔ اسی طرح لگاتار کئی راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خواب نظر آتا رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو آپ کے دل میں کوئی شک نہیں رہا۔ آپ نے سر جھکا کر اللہ پاک رب العالمین کے حکم کو قبول کر لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمسفر بنے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ملنے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آنگن میں پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی ہے۔ ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا، صرف اپنے کھلونوں پر تھا۔ انہیں اس طرح کھیلتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کیا کر رہی ہو عائشہ؟ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ عائشہ تو عائشہ ہی تھی، بچوں کی طرح انہوں نے جواب دیا، یہ تو میرا گھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، لیکن تمہارے گھوڑے کے تو پنکھ دکھ رہے ہیں، گھوڑوں کے تو پنکھ نہیں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی بات سن کر فوراً جواب دیا، آپ کو کس نے کہا کہ گھوڑوں کے پنکھ نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پنکھ تھے؟ ان کا یہ جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور سے ہنس پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں بیان کرتی ہیں کہ اس دن میری بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے کہ میں ان کے نورانی دانتوں کے مسوڑے تک دیکھ سکی تھی۔ سبحان اللہ! رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی عائشہ کی تیز عقل اور بہترین یادداشت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن آج کا یہ واقعہ ان کے دل میں نیا نشان چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو میری بیوی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی اسی عقل مندی اور یادداشت میں ہی کہیں نہ کہیں میری امت کی رہنمائی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ واقعی بعد میں یہی ہوا، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے 7 صحابیوں میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک تھی۔ ان کی تیز عقل کی وجہ سے انہوں نے اکیلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں بیان کی۔ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستوں، خولہ بنت حکیم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت قریبی سہیلی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम की तरफ से सौदा बिनते जमा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर गई थी और उन्हीं के जरिए रसूलुल्लाह और सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। खौला बिनते हकीम ने चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला बिनते हकीम के घर तशरीफ ले गए। उनके घर पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम को अपने तमाम ख्वाबों की बात बताई और उन्हें हुक्म दिया कि वह अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ यह पैगाम लेकर जाएं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम के सामने अपने सारे ख्वाब का जिक्र किया तो खौला बिनते हकीम बहुत खुश हो गई। उन्होंने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के पैगाम को लेकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गई। जब खौला बिनते हकीम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंची तो उस वक्त अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं थे। घर पर न पाकर खौला बिनते हकीम ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे रूमान के पास जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सारी बात कह दी। खौला बिनते हकीम के मुंह से ये बात सुनकर उम्मे रूमान इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे उनका गला रूंध गया। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि ये खुशखबरी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक कब पहुंचेगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी शान है। खौला बिनते हकीम अभी घर से निकली ही थी कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आ गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आने के बाद खौला बिनते हकीम ने उन्हें देखते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गौर से सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा के रिश्ते का पैगाम लेकर आपके पास भेजा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेहरबानी करके मुझे साफ साफ बता दीजिए। खौला के मुंह से ये बात सुनकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी के मारे अपने होश खो बैठे। दरअसल वो हमेशा से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक बनाना चाहते थे, लेकिन कभी अपनी जबान से ये बात कह नहीं सके थे। लेकिन आज जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रिश्ते का पैगाम भेजा था, इस खुशखबरी को सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के दरबार में सजदे में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला ही चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ कर दूं। सजदे से सिर उठाने के बाद वो एक बात को लेकर परेशान हो गए और खौला की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर खौला फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल लेने चली गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वो मेरा दीनी भाई है। इस सूरत में इस निकाह में कोई रिश्तेदारी की रुकावट नहीं है। रसूल करीम के इस फरमान के बाद खौला खुशी खुशी अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये खुशखबरी देने के लिए रवाना हुई और उन्हें सारी बात बता दी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुशखबरी सुनकर उनके दिल में खुशी की खुशबू फैलने लगी। इधर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पड़ोसी के घर में अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल थी और उधर उनकी रज़ाई माँ वाइला रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में मसरूफ हो गईं। आखिरकार उन्होंने आयशा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया और उन्हें घर ले आई। घर लाकर उनके हाथ पैर साफ किए, बाल संवारे, सजाया धजाया और निकाह के लिए तैयार किया। फिर निकाह की सजावट के साथ हजरत आयशा को मंगनी की रस्म में पेश किया गया। ये तकरीब बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रूमान, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और शामिल नहीं था। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर तय किया और इस तरह निकाह का काम मुकम्मल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था तमाम जहानों के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का तकरीब। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर दीन की दावत देने में मशगूल हो गए और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने माँ बाप के पास रहकर अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ गुड़ियों के खेल में मशगूल रहने लगी।
हज़रत आयशा की उम्र कम होने की वजह से वो बहुत शरारती थी। उम्मे रूमान आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को समझाती बुझाती, लेकिन वो बात नहीं मानती थी। एक दिन उम्मे रूमान ने उन्हें बहुत डांटा, इसलिए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के पल्ले पकड़कर मुंह फुलाकर रो रही थी। उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उम्मे रूमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ न कहिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उम्मे रूमान बहुत परेशान हो गईं और बोली, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बू से मेरी शिकायत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे जो भी करे, आप आयशा को कम से कम मेरी खातिर कुछ न कहें, उसे अपनी मर्जी से रहने दें। इधर कुरैश नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर सख्त जुल्म और सितम ढा रहे थे। नबूवत के 12 साल गुजर गए थे इसी तरह, और अब भी उनकी जुल्म जारी था। कुरैश के जुल्म की वजह से मुसलमानों की जिंदगी बिल्कुल खतरे में थी। तभी अचानक एक दिन उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। मदीना वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आकर बसने की दावत दी। उन्होंने वादा किया कि वहां वो मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और खुद भी इस्लाम कबूल करेंगे। मदीना वालों के साथ छुप छुप कर अहद हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि 2-1 करके मदीना चले जाएं, लेकिन बिल्कुल छुप छुप कर, ताकि मक्के के काफिरों को पता न चले। फिर भी उन्हें पता चल गया। इसके बावजूद भी छुप छुप कर बहुत सारे सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना जाने का फैसला कर लिया था। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था। जब भी अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी तभी वो मदीने के रास्ते पर रवाना होंगे। एक दिन दोपहर के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। आज न जाने क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुछ परेशान नजर आ रहा था। जब रसूल अल्लाह अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बेटियां आयशा और अस्मा अपने अब्बू के साथ बैठी हुई थीं। घर में और कोई नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर वक्त में अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आना देखकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घबरा कर बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे मक्के से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनने के बाद सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आप इस सफर में मेरे साथी हो सकते हैं। रसूलुल्लाह की बात सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथी बनने की खुशी में आंसू भरी आंखों से बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जिस दिन आपने मदीना हिजरत करने का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊँट खरीदकर उनकी परवरिश शुरू कर दी थी। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और वो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में शाम होने का इंतजार करने बैठ गए। इधर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सफर की तमाम तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया सूत्रों से पता चल गया था कि अबू जहल समेत दूसरे कुरैशी सरदार मिलकर रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की सतह से मिटा देने की साजिश कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनके हवाले तमाम लोगों की अमानतें कर दी। साथ ही उन्हें हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह के घर में उनके बिस्तर पर सो जाएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक से तमाम अमानतें लेकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। जब मक्के में रात का अंधेरा छाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। इसके बाद वो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर सफर के लिए खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट पर सवार होकर रवाना होने लगे तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा, तुम हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के लिए निकल रहे हैं। यह कहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफर शुरू किया। लंबा रास्ता और कई मुश्किलें पार करके
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचने के तकरीबन 3 महीने बाद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा समेत उनके पूरे खानदान को मदीना लाया गया। काफी वक्त गुजर गया था, शव्वाल का महीना चल रहा था। इस दौरान मस्जिद नबवी की तामीर का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। इसी दौरान एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आयशा तो आपकी बीवी हैं, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। सुबहान अल्लाह। अगले ही दिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपनी बीवी को घर क्यों नहीं ले आते? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि आयशा को मेरे घर ले आऊं, लेकिन मेहर की पूरी रकम फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक से इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि अगर इस वक्त रसूलुल्लाह को खुश किया जा सके तो ये बहुत बेहतरीन काम होगा। ये सोचकर वो अपने घर गए और वहां से 500 दिरहम लेकर वापस रसूलुल्लाह के पास आए। उन्होंने ये सारे पैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया के तौर पर पेश कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये हदिया कबूल किया और उसी हदिये को हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मेहर के तौर पर उन तक पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने मेहर की अदायगी कर दी। जब आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाए, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शादीशुदा बीवी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर लाने के मकसद से सहाबियों और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के साथ एक छोटी सी तकरीब का इंतजाम किया। इसी तकरीब के जरिए आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर ले आए और इसी के साथ शुरू हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गृहस्थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रसूल पाक जिस कमरे में रहते थे, किताबों में उस कमरे की तफसील किताबों में कुछ इस तरह आई है। वो एक छोटा सा कमरा था। चारों तरफ की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। छत के छप्पर खजूर के पत्तों और खजूर की शाखों से बना था। बारिश का पानी कमरे के अंदर ना आ जाए, इसके लिए छप्पर के ऊपर कंबल जैसे कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमारी गृहस्थी इतनी सादा और सरल थी कि घर में दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल तक नहीं होता था। अक्सर ऐसा होता था कि पूरा महीना गुजर जाता, लेकिन दिया जलाने के लिए तेल का इंतजाम नहीं हो पाता था। चांद की रोशनी में ही हमारी रातें गुजरती थी, चाहे पूर्णिमा की भरी रात हो या अमावस की अंधेरी रात। दरअसल खाना पकाने के लिए ही तो तेल नहीं होता था, तो फिर दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से आता? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे फरमाती है, अगर हमारे पास दिया जलाने के लिए तेल होता तो उससे हम खाना भी पका सकते थे, क्योंकि उस जमाने में हम जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। वही तेल खाना बनाने और दिया जलाने दोनों काम आता था। इस तरह महीनों के बाद महीने गुजरते रहे। जब कोई सहाबी कुछ हदिया देते तो बस वही होता रसूलुल्लाह के घराने का एक वक्त का खाना, और सहाबा सिर्फ चंद खजूर या एक प्याला दूध या 1-2 रोटी ही हदिया देते थे। लेकिन मोहब्बत की कमी नहीं थी। हमारे घर में कम खाना होता तो भी हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। अंधेरे में जब हम खाना शुरू करते तो एक ही खाने पर हम दोनों का हाथ पड़ जाता था, तब हम बांट कर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी गोश्त का खाना मिलता तो मेरी चबाई हुई हड्डियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चबाकर खाते थे। पानी के प्याले से मैं पीने के बाद जिस जगह से मैंने पिया होता, उसी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ लगाकर पीते थे। सुभान अल्लाह। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशगवार और मुबारक थी।
حالانکہ ان کی چھوٹی سی کٹیا میں کوئی اچھا سامان نہیں تھا، لیکن محبت سے بھرپور تھا وہ گھر۔ ان کا گھر جیسے اللہ کے جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ پیسے، روپے اور دولت انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ انسان کا اصلی سکون تو دل کا سکون ہے۔ جسے دل کا سکون مل گیا اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر گھر میں ایسے ہی سکون اور برکت کا انتظام فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، آج کا ویڈیو یہیں تک۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو ضرور اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس خوبصورت کہانی کو پھیلائیں۔ سب سے پہلے ہمارے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو میں ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔